وہ عورت جس پہ ایسڈ بھی پھینکا جاتا ہے, وہ عورت جس کی آنر کلنگ کی جاتی ہے, وہ عورت جو گھر کے اندر صفائی کرتی ہے لیکن اس کا معاوضہ پورا نہیں دیا جاتا. I am not speaking as a woman who has her personal experience. Being a feminist, I speak for all women. پولیس کی بھاری نفری اور جگہ جگہ یہ بیریئرز اور اس علاقے کو ایک سراؤنڈنگ کے اندر کھڑے کر دینے کے بعد آج خواتین کا مارچ منایا جا رہا ہے. آج 8 مارچ منایا جا رہا ہے. شاید یہ ایسا نہ ہوتا کہ جو پچھلے 8 سے 10 روز میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی سکرینز پر ہو چکا ہے. شاید یہ علاقہ اتنا سفوکیٹڈ نہ ہوتا, شاید یہ اتنی ہی آزادی ہوتی. صرف چند بیہودہ قسم کے سلوگنز ریز کیے گئے کچھ بے وقوف لوگوں کی جانب سے, جس کی بنا پر آج ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونا ہے لیکن بھرپور سیکیورٹی میں ہونا ہے. آئیے ان خواتین مارچ کے حوالے سے نہ صرف ان کے پلے کارڈز, ان کی اصل سوچ اور ان کے ایجنڈے پر بات کر لیتے ہیں. جی آپ کے ہاتھ کا یہ وہ ہے, اس کو کیا کہیں گے, سلوگن ہے نا, ہاں یس یس, کہ لڑکیاں یہ نہیں کرتی ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ سو اتنی دفعہ ہم لوگ بڑوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں لڑکیاں یہ نہیں کرتی, لڑکیاں یہ نہیں بولتی, لیکن اب ہم لوگوں نے نہ اس میں سے نکال دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں یہ ہی کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ اپنے رائٹس کے لیے لڑتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں, کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں, ٹھیک ہے, جب جو انہیں نہیں کرنا ہوتا اس پہ منع بھی کر سکتی ہیں. یہ نہیں کہ دے ہیو ٹو گیٹ پرمیشن فرام ایوری بڈی ایلس. جو اپنی مرضی سے پاکستان میں نہیں کرتی, آپ کیا نہیں کرتی؟ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتی آج کل. جی بالکل, دیر آر سو مینی پیپل. اب شکر ہے آئی ایم فرام the start of society جہاں permission لینی نہیں پڑتی, but I know so many women who need to get permission from their husbands or their parents or ان کے بھائیوں سے یا دادا سے یا کسی سے. So we don't need permission. We should. میں آپ کو بتاتا ہوں, you are raising this voice for those women جن کے ساتھ یہ ایشو ہے. یہ this is not your personal experience. نہیں, this is not my personal experience. اللہ کا شکر ہے, I come from a family where we let women be themselves. And I feel کہ because I'm privileged, so I need to get out on the roads and talk for those women جو نہیں اپنے بارے میں بات کر سکتے. اچانک کیوں لگا؟ اچانک تو نہیں لگا. آئی تھنک جب سے ہم چھوٹے تھے تو یہ اپنے اراؤنڈ دیکھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریٹنگ اورینٹڈ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پرومس کرتا کہ میں آج ادھر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. آئی ایم ویری مچ وتھ. تھینک یو. پاکستان کی اس کلاس کی ڈیمانڈ نہیں ہے جس کلاس میں یہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. جس کلاس کے لیے یہ ہے نا, اس کلاس کی یہ لینگویج نہیں ہے. آپ کو یہ اردو میں کیوں نہیں لکھا؟ کیوں اردو ہی میں تو لکھا ہے. This is Roman Urdu, but it doesn't. وہ پرنٹ وہ نہیں پڑھ سکتے. ٹیکسٹنگ کرتی ہے ہر کلاسز میں. میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو 10,000 جو ہم ایڈورٹائزنگ میں کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹا ہے. جی میں میڈیا میں کام کرتا ہوں. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. جو لوگ فونز اون کرتے ہیں وہ رومن اردو میں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سنیں میری بات سنیں. اب یہ ایک میڈیا پہ جا رہا ہے, ٹھیک, ڈفرینٹ چینلز پہ جا رہا ہے. اگر یہ یوں لکھا ہو لڑکیوں کو ایسا نہیں بولنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ اور اس کراس کے ساتھ تو وہ امپیکٹ زیادہ تگڑا نہیں ہوگا. Maybe next time we can come in Urdu. Yes, میں یہ چاہ رہا But this time around, this is what it is, and I feel like this is strong enough. Sort of my مشورہ. In fact, I'm not saying I feel like لوگ نا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے. ہم بولنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو کسی چیز کی پرمیشن نہیں ہے. لڑکیوں کو یہ آپ نہ بولیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کو. جیسے آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے, ان مردوں کو آپ کو کر رہی ہے نا, ان مردوں کے لیے نا بہتر ہوتا ہے جن کو انگلش نہیں لکھنی آتی, سمجھ نہیں آتی, ان کو اردو میں بتائیں. بول رہے ہیں I don't understand what the problem is. It's like آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اب اس چیز میں کیا پرابلم ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ایک اردو بھی کر لے, وہ کلاس کو سمجھ آ جائے. آپ کے پلے کارڈ پہ معصوم بچوں کو تحفظ دو, ہم سب کہا سنا معاف کر دیں گے. What does it mean? What does it mean is that I have a 2-year-old daughter اور میں آئے دن نیوز پہ سن رہی ہوتی ہوں کہ بچوں کے اوپر تشدد ہوا ہے, ریپ ہوا ہے, ان کا کچھ ہے, but there's nothing concrete that can save my child from perpetrators یا rapists ہیں جو child abusers ہیں. اس طرح کا کوئی لاء نہیں ایگزسٹ کرتا. تو پھر میں کیا کروں, میں اس ملک میں اپنی بچی کو کیسے ریز کروں جس میں میرا ملک ہی نہیں مجھے پروٹیکٹ کر سکتا یا میری بچی کو. جبکہ زینب لاء بنا ہوا ہے اور
लोगों को सज़ाए मौत भी हो रही है और उम्र कैद भी रिकमेंड हो चुकी है विद बोथ हाउसेस, जी। इधर नेशनल असेंबली इधर पार्लियामेंट। से वो नहीं ना यार। बट आपको प्रोसीजर पता है कि वो कैसे होगा, क्या होगा? केस होगा, केस के बाद कल्प्रिट कंसीडर होगा और उसके बाद उसका पूरा जो प्रोसीजर है इट्स डिसहार्टनिंग टू सी। इफ यू पिक अप एनी गर्ल जिसके साथ कभी हुआ हो ये खुदा ना खास्ता, तो आपको पता है कि पुलिस वाले किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं या लॉयर्स जिस तरीके से करते हैं या जजेस जिस तरीके से, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ अब वुमन क्या टू चाहती से हैं कि क्या होना चाहिए? Obviously, you should be more inclined towards the women's side of the story. क्यों उन रेप विक्टिम सामने नहीं आते? क्योंकि लड़कों उन्हें से भी डर रेप लगता होता है? होता है। रेप तो बिल्कुल बच्चों होता से भी है, होता है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जिसने किया उसकी क्या सजा होनी चाहिए? They should be castrated publicly. इनकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए अरसलान। इससे क्या होता है कि दुनिया जो है, जो हमारी आवाम है, वो पहले से इतनी डिसेंसिटाइज्ड है, तो और जगह उनको मतलब क्लोज बिहाइंड क्लोज डोर दिस शुड बी एक्सिक्यूटेड आई थिंक। I just want to raise one thing. जी, जी, बताइए। Because I'm deeply working on it. जी जी। पब्लिकली क्यों नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आज तक तो होता रहा है, आप करते रहे, फिर क्या होगा? कोई डर जाता है इससे? पब्लिकली क्यों नहीं एग्जीक्यूट करना है, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं क्योंकि इससे आवाम जो है ना पहले से जो डिसेंसिटाइज हुई है टुवर्ड्स वायलेंस, तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। अगर चार दीवारी में करेंगे तो आवाम सही हो जाएगी। चाहते हैं आजकल हुई है? उनको नजर तो नहीं आएगी ना आजकल उनको। हुई है? हाँ, हो रही है इससे मगर इससे तो और इल बी वर्स देन ना उनके लिए, फिर और बुरा होगा उनके लिए। पब्लिकली किसी को एग्जीक्यूट करना, आप नहीं समझते कि किसी को डराना हो चाहिए थोड़ा? नहीं, वो Public को वैसे जो डरे जिस में भाई तरह किसी को पता है कि जिस तरह जिसको फांसी लग रही है उनको पता है कि वो डराना बिल्कुल डरना चाहिए। मगर डराना के और तरीके भी होते हैं, मतलब उनको उम्र कैद करके there's a million other ways. Public execution बस would मैं really बेशक इसको ऑनर नहीं करूंगा, लेकिन No, मैं नहीं, आपसे नहीं, that's question your करना- opinion. जी, जी, एक जी। छोटा सा जी, फिर जी, question जी, करना। जी, जी। क्या चार दीवारी के अंदर तो कोई बंदा ज़रबुल मिसल तो नहीं बना ना? नहीं, किसको पता है कौन किस, उसको क्या तकलीफ थी, उसको क्या थी? सामने जरा एक बार कर लें तो शायद पाकिस्तान में एक ऐसी एग्जांपल कोड हो जाए तो फिर जिंदगी में कोई सोचे भी ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी पहले मैं भी आपका जो आप point of सोच रहे हैं view- ना, हाँ। मैं पहले ऐसे सोच अच्छा रहा था। अब आप ये सोच रहे हैं। Yes, अच्छा क्योंकि अच्छा आई हैव गॉट किड ना, मेरी छोटी बेटी है। हाँ। नहीं, अगर लिसन इफ खुदा खास्ता नाउजुबिल्लाह इट हैपेंड टू माय किड, तो Then- फिर तो डेफिनेटली आई वुड वांट कि मेरे सामने यार हो। मगर आई जस्ट फील के यू नो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द एवरीथिंग अराउंड अस, यू नो आवर नेशन, आवर पीपल, आई थिंक उनको इस तरह की इमेजेस देखना, वैसे ही पहले इतने वो वायलेंस की तरफ हुए हुए हैं, क्या कहते हैं, इंक्लाइन टुवर्ड्स वायलेंस, तो वो इतने डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और कि मतलब उनके लिए वैसे ही कत्ल करना कोई मसला थैंक नहीं यू वेरी होगा। मच। 8 मार्च है, वो 100 200 500 अफराद ने डिवाइड करने की कोशिश की है, ऐसे हो जाएगा डिवाइड? नहीं, देखिए ये तो डे वन से हज़रत आदम को उतारा गया तो हज़रत अम्मा हवा को उतार के नो इंसानी की बुनियाद रहती, तो ये तो मर्द और औरत का तो हमेशा का साथ है और रहेगा। और आई थिंक बेटर हाफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों साइड बाय साइड हैं। ये तो नेचर ने, मज़ाहिब ने, मुआशरों ने मर्द और औरत को रोल डिवाइडेड हैं, लेकिन दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि कहीं से भी औरतें हमारी, देखें वो तो मजलूम तबका किसी जगह भी हो, गुर्बत हो, बीमारी हो, ख़वातीन हो, वो फिर अगर कहीं डिप्राइव्ड लोग हैं वो तो एक्सेप्शंस होती हैं। हमारा माशरा डिमांड क्या कर रहा है ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ये इसको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहे हैं हम लोग। हमारा माशरा क्या डिमांड कर रहा है? देखें जी, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल कह लें, मुट्ठी भर लोग हैं। मेरा तो ख्याल है कि हमारे माशरे में इतनी इज़्ज़त है ख़ातून की, इतना ऑनर है, हम लाइन में खड़े हों तो मर्द जगह दे देते हैं। भाई हम वहाँ निकाली करने क्यों जा रहे हैं जहाँ औरत को धक्के पे धक्का पड़ रहा है? वेल एंड गुड, आप भी लाइन में लगें, फिर यही औरतें चीखती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, एक जगह हमें इज़्ज़त मिल रही है, इसमें ये नहीं है कि कहीं से कमतर है। अगर मर्द हटो बच्चों कहता हुआ अपनी किसी भी बहन, बीवी, बेटी के लिए रास्ता बना रहा है, वो उसको ऑनर दे रहा है, उसको अपने आगे चलने का कह रहा है। ख़वातीन का ये मेरे ख्याल में एक कॉम्प्लेक्स है। ये 3-4-500 का जत्था ये दरअसल मुआशरे में खराबी क्रिएट कर रहा है, ना कि बेहतरी। जी, ये बिल्कुल ख़राबी है। मैं समझती हूँ जहाँ ख़वातीन के हकूक़ हैं वहाँ फ़राइज़ बहुत ज़्यादा है। माँ की गोद दुनिया की पहली दस्तगाह है हर बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की हो। माँ की गोद, वहाँ से वो पहला अपना कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होती है, तो माँ को उस पर फोकस करना चाहिए। अगर उसको मर्दों पे गिला है तो बेटे की तरबियत करे वहाँ। मैं तो इस पर बिलीव करती हूँ कि मेरा बेटा अगर अपनी बीवी के साथ कोई ज़्यादती करता है तो वो मुझे आंसरेबल है। मैं अपनी तरबियत को कोसूंगी कि मेरे बेटे ने ये हरकत की है, और लिटरली आई डू दिस। मैं प्रैक्टिस करती हूँ इस चीज़ को कि मर्दों की तरबियत जब औरत के ज़िम्मे लग गई, माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रह गया, अल्लाह ताला ने हमें ऑनर दिया है,
अपने बाद तख्लीक में औरत को शामिल किया। इतना बड़ा ऑनर है। अब ख़वातीन अपना मुकाम छोड़ दें, आई डोंट नो, मुझे मुनासिब रहनुमाई मज़हब से ली जा सकती है, क्योंकि मैं जब इस इशू पे अगर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं खुद सड़क पे हूँगा, कि जब कहा गया है कि माँ से बाप से ज़्यादा माँ की इज़्ज़त करनी है, जब कहा गया है कि भाई से ज़्यादा बहन का ख्याल रखना है, जब कहा गया है कि बेटे से ज़्यादा बेटी को फौकियत देनी है, दोस्त से ज़्यादा बीवी को फौकियत देनी है, तो इस्लाम ने तो इतना बड़ा रुतबा दे दिया, तो ये किसी स्पेसिफिक एजेंडे के तहत है? मैं समझती हूँ कि इस्लाम में हमारी तो उम्मत ही हज़रत फातिमा से शुरू हुई। हजूर सिर्फ एक नाना थे, आप अंडरस्टैंड करें, हजूर वॉट नॉट अ दादा। हमारे मुआशरे ने दादा बना दिए, हजूर नाना थे, और मुसलमानों की उम्मत माँ से शुरू होती है। ईसाईयत हज़रत मरियम से शुरू होती है। आप हम लोगों को सिर्फ सोचना पड़ेगा, सिर्फ हमें थॉट प्रोसेस देनी पड़ेगी, औरत को अपना मुकाम पहचानना पड़ेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां परफॉर्म करनी होगी। मैं ज़्यादा ज़ोर अपने फ़राइज़ पे देती हूँ, हकूक़ हम कमांड करेंगे अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ऐसे मौके पर कि जब डाइवर्जन और डिवाइड करने के लिए मुआशरे में कुछ ऐसे इक़दाम हो रहे हैं, क्या आज के दिन को आज़ादी मार्च के साथ करेंगे कि औरत के हकूक़ के हवाले से जो डिफरेंट मसाइल हैं, जायदाद में उनको हिस्सा, प्यार मोहब्बत लाड प्यार में नहीं दिया जा रहा, शौहर अपना हक महर नहीं दे पा रहा, और कि ये बेसिक इश्यूज़ थे कि ना कि मैं ऐसे बैठूंगी, सब्ज़ी मैं काट लूँगी और फलाना 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 फलाना, कि ये डिमांड है। एब्सोल्युटली। पहली बात तो ये कि जहाँ तक फ्रीडम का ताल्लुक़ है और जहाँ तक हकूक़ का ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जितनी आज़ादी हमें हमारे दीन ने दी और हमारे रसूल की तरफ से जो हकूक़ हमें मिले, उसके बाद कोई डिस्कशन इस पे रह नहीं जाती। बात सिर्फ जो बेसिक है अगर समझ ली जाए तो वो सिर्फ इतनी है कि हम औरत एज़ विमेन जब हम तरबियत करने पे या ब्रॉटअप करने पे आते हैं, जिस तरह बात होती है कि माँ की गोद पहली दर्सगाह है, तो हम क्या समझाती हैं? क्या हम अपने बेटों को ये तालीम देती हैं कि सिर्फ औरत की रिस्पेक्ट करनी है? सिर्फ माँ की नहीं, औरत की, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो आपके साथ काम करती हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे वो किसी की माँ हो। क्या सिर्फ अपने ही माँ की इज़्ज़त करनी है या बाकी सब औरतों की भी इज़्ज़त करनी है? सो बेसिकली मैं इस दिन के हवाले से ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे हम पे ही आती है। हमने ही इन मर्दों को, जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको हमने ही ट्रेन करना है, हमने ही ट्रेन किया हुआ है। जब एक आदमी, एक खामद अपने घर में तशद्दद करता है तो वहाँ उसकी माँ और बहन भी होती है। इस पे आपने हैशटैग दिया वाई आई मार्च, आपने एक्सक्यूजेस दिए कि जिसकी वजह से आपको बाहर आना चाहिए, बिकॉज वुमेन आर नॉट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर बैडली रेज्ड बॉयज। ये उन औरतों के लिए है जिनको, जो ऐसे मर्दों के दायरे होते हैं जिनके हकूक़ नहीं पूरे कर रहे होते, जो उनको एज ह्यूमन तस्लीम नहीं कर रहे होते, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, और उन औरतों को कहा जाता है कि बर्दाश्त करो, क्योंकि औरत का तो काम है बर्दाश्त करना, औरत का काम है घर बना के रखना। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस औरत की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो बच्चों को, उसने अगली जनरेशन को रेस करना है, उस माइंडसेट के साथ वो अगली जनरेशन को कैसे रेस करेगी? अच्छा, तो ये मिसगनी का क्या है मतलब? मिसोजिनी सोच वो सोच है जो कहती है कि मर्द जो है वो बालातर है औरत से, और वो हर तरह से सुपीरियर है औरत से। मैम, आपने स्टॉप हैरासमेंट लिखा है, अवामी वर्कर्स पार्टी लाहौर, इसकी थोड़ी डिफाइन कर देंगी तो ज़्यादा मुनासिब। जी देखें, ख़वातीन जो हैं घर के अंदर भी काम करती हैं और घर से बाहर भी काम करती हैं। जो घर से बाहर का काम है वो रिकग्नाइज तो है लेकिन अंडर वैल्यूड है। हर वो काम जिसकी आप तनख्वाह देखेंगे कि कम है, वो ख़वातीन कर रही हैं। मसलन एक टीचिंग एक ऐसा शोबा है जो हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चों की तरबियत की जाती है, लेकिन अगर आप ख़वातीन की तनख्वाहें देखें टीचिंग के अंदर और उनकी दूसरी मुराद देखें तो बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसी तरह घर के अंदर के जो काम हैं, जो मर्द भी कर रहे हैं लेकिन ख़वातीन भी कर रही हैं, घर के काम बहुत चैलेंजिंग होते हैं। उनको ये कह देना कि जी ये तो आम सी बात है, ये तो सारी ख़वातीन करती हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सारी ख़वातीन करती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो चैलेंजिंग नहीं है या उनको करने के लिए आपको किसी ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक स्किल है। तो हम सिर्फ यही बात चाहते हैं कि हमारे काम को जो घर के अंदर हो रहा है और जो घर से बाहर हो रहा है रिकग्नाइज़ किया जाए और उसको वैल्यू किया जाए। जी मैडम, आपका ये है
ਵੋਟਸ ਇਸ 'ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ये कहाँ से आपको ऐसा लगा कि वाकई ये सोच का मसला है? क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें औरत की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मर्द की सोच के हिसाब से होती है। तो ये कहने का मतलब कि मसला साढ़े पोस्टर का नहीं, मसला थोड़ी सोच का है। वो बात ही यही है कि आप जो बना रहे हैं, आप जो चीज़ें, जो लोग हमारे लोग हैं जो बात करते हैं वो लोगों की सोच के हिसाब से करते हैं। औरत जो है मसला उसका नहीं है। आप एक पोस्टर देख के अगर उसमें से आप एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेना चाहते हैं तो वो आपकी सोच है। अगर आपको ये लगता है कि औरत जब कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसमें औरत आपकी सोच अगर वल्गैरिटी की तरफ जाती है तो वो आपकी सोच है। वैसे आप बताएं मेरा जिस्म मेरी मर्जी से बेसिक चीज़ है। एक वो बच्ची जो कि जिसकी शादी 13-14 साल की उम्र में कर दी जाती है उसकी इजाज़त के बगैर, अभी भी हो रही है? अभी भी होती है। तेरा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एक वो बच्ची लॉ में ही नहीं है हमारे तो। लॉ में तो सर जानवरों को पत्थर मारना भी नहीं है, कितने जानवरों को मारा जाता है। लॉ तो आपका कहता है कि आप किसी किस्म की ज्यादती कहीं भी नहीं है। ऑनर किलिंग भी तो लॉ नहीं, कत्लो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में मर्डर भी अलाउड नहीं है, मर्डर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जानवर को पत्थर मारना अलाउड नहीं है, जानवर को मारा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना और लॉ के अंदर होने में और उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करने में फ़र्क है। अभी भी बच्चियाँ अगर 15 साल 16 साल की बच्ची की शादी होती है तो वो अगर नहीं सलाहियत रखती माँ बनने की, उसको फोर्स किया जाता है। एक ऐसी लड़की जिसकी इंटरेस्ट नहीं है किसी लड़के के अंदर, अगर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है या उसको ऑनर किलिंग कर दी जाती है, वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको अगर लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब सड़क के ऊपर नाचना है और नंगा होना है, तो ये आपकी सोच है, क्योंकि आपने औरत के जिस्म को एक ही तरीके से देखा है। अगर एक औरत के जिस्म से आपको आपने एक तरीके से देखा है तो ये आपकी सोच है ना, मसला थोड़ी सोच का है, साढ़े पोस्टर्स का नहीं है। एक पोस्टर ने अगर एक बात वाजिया तौर पे कह दी है कि मेरे जिस्म पे, आपके जिस्म पे आप क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या शर्ट पहन के घर से निकलते हैं, वो आपका राइट है ना। तो औरत के लिए ये इजाजत क्यों नहीं है? किसने मना किया वैसे? सोसाइटी ने। क्या कहती है? आपको क्या लगता है सोसाइटी क्या कहती है? क्या कहती है? आपने सर नहीं कवर किया, आपने स्लीवलेस नहीं पहना, आपने ये क्यों पहना है, आपका गला लो है, आपका दुपट्टा नहीं है, ये सोसाइटी कह रही है। हम तो नहीं कहते, हम तो नहीं बात करके जाके आपके क्या सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स यही है, सबसे बड़ी सोर्स यही है, सबसे बड़ी सोर्स आपका मीडिया है, सबसे बड़ी सोर्स जो है वो मीडिया है। आपका मीडिया जो है वो कैमरामैन जब आपके ड्रामे बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, वो कौन बनाता है? मीडिया बनाता है ना। अगर मीडिया एक टीवी के ऊपर एक ही चीज़ रिपोर्ट कर रहा है बार बार, जिसमें औरत जो है वो घर में बैठने वाली, रोने वाली, शौहर की मार खाने वाली, दबने वाली औरत ही महान है, लेकिन एक ऐसी औरत जो किसी भी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकल के काम करना पड़ता है, करना चाहती भी है, मैं काम करती हूँ, मैं चाहती भी हूँ, जो मेरी मजबूरी भी है। ये सारी डिमांड्स आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि आप ओवरऑल सोसाइटी को आप रिप्रेजेंट एक करना और चाह बात रही हैं, याद उसके रखिएगा, रास्ते एक और बात रिप्रेजेंट याद कर रही हैं? रखिएगा, जो ये मैं पूछना चाह रहा जो हूं। फेमिनिज्म उसी है में ना, फील होता है ना तकलीफ जिसके अंदर से निकली हो। फेमिनिज्म जो है ना, वो अगर आप, हमने इसकी ट्रांसलेशन गलत की हुई है, अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे ना तो वो कहता है सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इक्वालिटी बिटवीन ऑल जेंडर्स। सीधी सी बात हो गई। मैं बहुत सी चीज़ों में प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने की सलाहियत दी, मुझे समझ आई, मेरे पास सारी चीज़ें, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो औरत जो घरों में सफाई करती है, जो घरों में काम करती है, उसके पास वो प्रिविलेज नहीं जो मेरे पास है। मैं अगर ये लेके बाहर निकल रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपनी घर के या अपने बेड पे बैठ के या ड्राइंग रूम की कुर्सी के ऊपर बैठ के बात नहीं कर रही, मैं हर उस औरत की बात कर रही हूँ जो पिसती है। वो औरत जिस पे एसिड भी फेंका जाता है, वो औरत जिसकी ऑनर किलिंग की जाती है, वो औरत जो घर के अंदर सफाई करती है लेकिन उसका मुआवजा पूरा नहीं दिया जाता। आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ वुमन हु हैज़ हर पर्सनल एक्सपीरियंस। बीइंग अ फेमिनिस्ट आई स्पीक फॉर ऑल वुमेन। 8 मार्च है, ख़वातीन मार्च। हमने इस पूरी मार्च को कवर किया क्योंकि हमने सोशल मीडिया के थ्रू वादा किया था कि इस मार्च को ज़रूर कवर करेंगे, और लेकिन इस मार्च में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, उनके व्यूज़ भी जाने, वो क्या कहते हैं, असल में क्या मानते हैं। लेकिन इतना बहुत बताना लाजिम होगा कि इस पूरे मार्च में कहीं नहीं था, तो इस बारी वो चार्ट पेपर पे लिखा हुआ ये नहीं था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी मीडिया के थ्रू उन ख़वातीन को भी ये बात इतनी मुनासिब नहीं लगी, शायद समझ आ गई, और यही वजह है कि आज ओरिजिनल इश्यूज़ के साथ उन पैनाफ्लेक्स को, उन प्ले कार्ड्स को उठाकर ये लोग सड़कों पर थे। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।